स्टूडेंट्स, इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा है एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन, सेपरेट इक्वेशंस, कंबाइंड इक्वेशंस and conditions, different conditions which is parallel or perpendicular lines. Now we learn about some examples having conditions for slope. Different conditions रहेंगी slope के लिए, उस तरह के एग्जाम्पल अभी हम यहाँ देखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में का है. Find the value of k if sum of the slopes of line represented by x square plus kxy minus 3y square is equal to 0 is twice their product. What is given here? Sum of slopes of line. यानी यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है स्लोप और उस पर की कंडीशंस अपने को जो मालूम है उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. क्या कहा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ लाइन. सम इज नथिंग बट डिनोटेड बाय m1 प्लस m2. सम इज m1 प्लस m2. सम ऑफ स्लोप इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? m1 इंटू m2 एंड इट इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट. सो सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फ्रॉम द गिवन इक्वेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b एंड h. a value is 1, b value is minus 3 and 2h. 2h value is k. So h value is k by 2. So we get a is equal to 1, b is equal to minus 3 and h is equal to k by 2. We know that for sum and product of the slopes m1 plus m2 is equal to minus 2h by b and m1 into m2 is equal to a by b. We use this result in this example. m1 plus m2 is always equal to minus 2h by b and m1 into m2 is a by b. Put the value of a, b and h. Minus 2, h value is k by 2 upon b. b value is minus 3. So 2 get cancel, minus minus get cancel, remaining term is m1 plus m2 is equal to k by 3. Then for the product, m1 into m2 is equal to a by b. a value is 1, b value is minus 3, so we get m1 into m2 is equal to minus 1 by 3. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट करके रखा है ये जानबूझ के करा है. यहाँ पर आपको जब भी पेपर छुड़ाओगे तो यहाँ पे 1 मार्क पोस्टिंग किया गया रहता है. नाउ फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन वी गेट सम एंड प्रोडक्ट. व्हाट इज योर कंडीशन फॉर गिवन इक्वेशन? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 इंटू m2. सम ऑफ स्लोप इज इक्वल टू 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट. ये कंडीशंस आपकी अलग अलग रहेगी अलग अलग एग्जाम्पल्स में, उस हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है. m1 प्लस m2, आपकी m1 प्लस m2 की वैल्यू है k बाई 3. सो k बाई 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 इंटू m2. m1 इंटू m2 वैल्यू इज माइनस 1 बाई 3. सो वी गेट हियर माइनस 1 बाई 3. सो k 3 गेट कैंसल, k is equal to minus 2. This is your value of k. Again see that given equation is there, x square plus kxy minus 3y square is equal to 0. So get the value of a, b and h. This equation is for slope
sum of the slopes and product of the slope. So we know that sum of the slope is minus 2h by b and m1 into m2. Product of the slope is a by b. Get the value for sum and for the product. Use the condition. Condition is sum of the slope of lines is twice their product. So m1 plus m2 is equal to 2 times of m1 into m2. Put the value and get the value of k. यहाँ पे आप होमवर्क करिए. इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड कंडीशन है इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट है. तो ट्वाइस देयर प्रोडक्ट की जगह पे आप लीजिए 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी आपका गिवन इक्वेशन चेंज हुआ जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस की जगह पे क्या यूज़ करेंगे हम 3 टाइम्स, थ्राइस देयर प्रोडक्ट. ये आप लोग सेम मेथड से होमवर्क करिए. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल. अगेन पैटर्न इज सेम. फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ slopes of line represented by 3x square plus kxy minus y square is equal to 0 differ by 4. Differ means minus. Subtraction of slope is differ by 4 means m1 minus m2 is equal to 4. It is given. आपको सिर्फ स्लोप की कंडीशंस अलग अलग रहेगी, उस हिसाब से सॉल्यूशन करना है. Given equation 3x square plus kxy minus y square is equal to 0. Get the value of a, b and h. a is equal to 3, b is equal to minus 1 and h is equal to k by 2. For sum of the slope, sum is m1 plus m2 is equal to minus 2h by b. Put the value of h and b. So minus 2, h value is k by 2 upon b value is minus 1. So again minus minus cancel, 2 get cancel, remaining term is k. m1 into m2. m1 into m2 is always a by b. Put the value of a is 3, b is minus 1, so you get minus 3. गिवन कंडीशन क्या दी है? स्लोप ऑफ लाइन डिफर बाय 4 मीन्स m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4. नाउ यूज द रिलेशन फॉर माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन टर्म. व्हाट इज योर रिलेशन? m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2. ये रिलेशन आप कई बार यूज़ कर चुके हैं. m1 माइनस m2 होल स्क्वायर. m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या थी? 4 थी. 4 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2. क्या मिली? m1 प्लस m2 इज k. सो k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 माइनस 3. सो माइनस 4 इंटू माइनस 3 इट इज़ प्लस 12. सो यू गेट इक्वेशन एज 16 is equal to k square plus 12. k square is equal to 4 means k is equal to plus minus 2. You get the value of k as plus minus 2. This type of example is either 2 mark, 3 mark or MCQ type question also. नहीं हुआ. Then next examples where one equation of line is given and standard equation of line is given. Find the condition that the line 4x plus 5y is equal to 0 coincides with
one of the lines given by ax square plus twice hxy plus by square is equal to 0. In this example, one equation of line means 4x plus 5y is equal to 0 is given, and this is standard equation of line is given. In the previous example, relation between slope is given. Now here, from the given equation of line, find out the slope, means value for m. What is given equation of line? 4x plus 5y is equal to 0. 4x plus 5y is equal to 0. सो ये इक्वेशन पर से हम स्लोप कैसे निकालेंगे? डिफ्रेंशिएट करो. सो 4 प्लस 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. सो 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4/5. Means from the given equation of line you get the value for m, which is nothing but your dy by dx value, which is here -4/5. ये वैल्यू मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दी है. सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 4x plus 5y is equal to 0, स्लोप m is equal to -4/5. किस तरह से निकाली है ये यहाँ दिखाया है. सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करना है और dy by dx की वैल्यू पुट करना है. सो यू गेट द वैल्यू फॉर m. यहाँ पे हमने स्लोप की वैल्यू निकाल दी. वी नो दैट द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज. हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा? बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए इज इक्वल टू 0. ये किस तरह से आया है ये अब हमने पुराने वीडियो में देखा है. स्टैंडर्ड इक्वेशन है बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए इज इक्वल टू 0. सो इन दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ m. b into m value is -4/5. So -4/5 whole square plus twice h -4/5 plus a is equal to 0. अब ये जो इक्वेशन हमने m की वैल्यू पुट करने के बाद मिला है उसको सॉल्व करिए. b as it is -4/5 whole square. So you get 16/25 minus plus into minus 2 into 4 is 8 minus 8h/5 plus a is equal to 0. In the first term you have denominator as 25. In the second term denominator is 5. Here denominator is 1. So you get the combined denominator as 25, that is multiply फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म बाय 25. सो क्या होगा आपका आंसर? 16b माइनस इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 5 माइनस 40h प्लस 25a इज इक्वल टू 0. उसको a, h और b के फॉर्म में लिखो. a है आपका 25a माइनस 40h प्लस 16b इज इक्वल टू 0. दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ लाइन. इस एग्जाम्पल्स में इस पैटर्न में क्या करना है आपको? फॉर गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर स्लोप. हियर वैल्यू फॉर स्लोप m इज इक्वल टू -4/5. पुट दैट वैल्यू इन ऑक्सिलरी इक्वेशन. स्टैंडर्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन इज bm square plus twice hm plus a is equal to 0. And by putting the value of m you get condition as whatever your condition. Students, सेम इक्वेशंस रहेगा नीचे वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन. और ये जो इक्वेशन है फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन, ये इक्वेशन आपका बदल जाएगा और वो इक्वेशन है
3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। आपको सेकंड एग्जाम्पल होमवर्क करके करना है। होमवर्क क्या रहेगा? फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 coincides with one of the lines given by ax square plus twice hxy plus by square is equal to 0. Here we change only one equation, which is 4x plus 5y is equal to 0 is nothing but 3x minus 2y is equal to 0. आपको सेम प्रोसीजर से निकालना है। गेट द वैल्यू ऑफ m, पुट दैट वैल्यू इन स्टैंडर्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड फाइंड आउट कंडीशन। अब सेम पैटर्न में हम सेकंड एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे कंडीशन थोड़ा अलग है। कंडीशन देखिए, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मे बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन्स represented by ax square plus twice hxy plus by square is equal to 0. What is given here? One equation of line is given, which is 3x plus y is equal to 0 is given, but that equation is may be perpendicular to one of the line. यहाँ पे और एक कंडीशन दी है, वो है perpendicular to one of the line. सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन क्या है आपका? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3, दैट इज m वैल्यू इज इक्वल टू -3। स्लोप ऑफ लाइन इज, for the given equation 3x plus y is equal to 0 is -3। आपके इक्वेशन ऑफ लाइन पर से हमने स्लोप निकाल लिया, that is -3। now use the condition that line may be perpendicular to one of the line. given condition that line is perpendicular to one of the line। अब अगर आपके पास में कंडीशन क्या है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन की, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर हमारा एक स्लोप है -3 तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। दैट इज स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज माइनस ऑफ -1/3 इज नथिंग बट 1/3। कंडीशन परपेंडिकुलरिटी की है तो हम क्या करेंगे? जो स्लोप निकला उसका उल्टा करेंगे, मीन्स वो हो जाएगा -1/3 और उसको हम यूज़ करेंगे माइनस साइन बाय दिस कंडीशन। तो माइनस माइनस कैंसल, बचा सिर्फ 1/3। सो स्लोप ऑफ लाइन इज 1/3, दैट इज हियर m वैल्यू इज 1/3। ये कंडीशन ध्यान में रखो, परपेंडिकुलर है इसलिए हमने जो स्लोप निकला उसको उल्टा लिखा, मीन्स -3 है तो उसका हो जाएगा -1/3 और साइन चेंज किया, मीन्स अप्लाई अगेन माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप m इज इक्वल टू 1/3। पुट दैट वैल्यू ऑफ स्लोप इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। वी नो दैट द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन इज bm square plus twice hm plus a is equal to 0. Put the value of m value is 1/3। यहाँ हमेशा ध्यान में रखिए स्लोप की वैल्यू ये पुट करना नहीं है, यहाँ एक कंडीशन दी है परपेंडिकुलरिटी की, इसलिए स्लोप की वैल्यू उस कंडीशन पे डिपेंड करेगी। m is equal to 1/3। Put the value of m 1/3 whole square plus twice hm into 1/3 plus a is equal to 0. So you get b/9 plus twice h/3 plus a is equal to 0। पूरे इसका LCM निकालिए।
फर्स्ट इसमें 9 है, सेकंड इसमें 3 है, थर्ड इसमें 1 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को बाय 9. सो यू गेट b प्लस 6h प्लस 9a इज इक्वल टू 0. इसको आप a, h और b के फॉर्म में लिखिए. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड कंडीशन. अब दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है जो कि डायरेक्टली कोइंसाइड्स विथ लाइन, अदर लाइन. यहाँ पे क्या कहा गया है, परपेंडिकुलर टू लाइन. सो परपेंडिकुलर होने से क्या हो रहा है, आपका स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है, एंड दैट स्लोप इज हियर 1/3. यहाँ पे आपको होमवर्क करना है. इक्वेशन है px प्लस qy इज इक्वल टू 0. मीन्स एग्जाम्पल क्या रहेगा होमवर्क का, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन px प्लस qy इज इक्वल टू 0 may be perpendicular to one of the lines represented by ax square plus twice hxy plus by square is equal to 0. 3x plus y is equal to 0 is replaced by another equation which is px plus qy is equal to 0. This is again your exercise question, and this question is of show that type. Get the value for that second example and solve all the example in your notebook. Now the next pattern of example is find the combined equation of pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines represented by 5x square plus 2xy minus 3y square is equal to 0. This topic is most important. What is given here? Find the combined equation of pair of lines. ये एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप पर का है. कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, यानी आपको दो इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. कंडीशन क्या दी है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन. इक्वेशन कैसा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है और परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है बोले तो स्लोप का यूज़ करना है, और पासिंग थ्रू ओरिजिन है बोले तो y इज इक्वल टू mx फॉर्म का यूज़ करना है. सॉल्यूशन, ये एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ लिख के रखा है. मार्च 17 और 18 में 3 मार्क के लिए आप पूछा गया है. आप कई बार इसको MCQ टाइप क्वेश्चन में भी करते हैं. सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 5x स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आपका इक्वेशन दिया है 5x स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन पर से आप a, b और h की वैल्यू निकालिए. a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड h इज इक्वल टू 1. वाई h इज इक्वल टू 1? बिकॉज 2h is equal to 2, so h is equal to 1. गिवन इक्वेशन पर से हमने a, b और h की वैल्यू निकाल ली. लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन. ये इक्वेशन ऑफ लाइन के स्लोप्स अगर हमने m1 एंड m2 लिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई b. So minus 2, h value is 1 and b value is minus 3. So minus minus get cancel. m1 plus m2 is equal to 2 by 3. And m1 into m2 product of slope क्या है, a by b.
A value is 5 and B value is -3. So you get -5/3. From the given equation of line, get the value of A, B and H and use the result for sum and product. Sum of slope is equal to 2/3 here. Product of slope is equal to -5/3. अब यूज़ करेंगे हम कंडीशन का. कंडीशन क्या है? पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स. परपेंडिकुलर है, सो बाय गिवन कंडीशन रिक्वायर्ड लाइन्स, जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करना है वो लाइन्स कैसा है? परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन है. दैट इज़ देयर स्लोप्स आर, परपेंडिकुलर होने से क्या हो जाएगा? जो हमने m1 और m2 स्लोप लिया था वो उल्टा हो जाएगा और उसका साइन चेंज हो जाएगा. सो -1/m1 एंड -1/m2. स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज -1/m1 एंड -1/m2. अब हमारे पास में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इन स्लोप फॉर्म. क्या है स्लोप फॉर्म? y इज इक्वल टू mx. तो यहाँ पर हम m के जगह पे क्या पुट करेंगे? एक इक्वेशन के लिए -1/m1 और दूसरे के लिए -1/m2x. Therefore, their equation of lines means the required equation of line, separate equation क्या हो जाएंगे उसके? y is equal to -1/m1 into x and y is equal to -1/m2 into x. m1 को मल्टीप्लाई करो और x को शिफ्ट करो तो मिलेगा आपको m1y plus x is equal to 0 and m2y plus x is equal to 0. m1y plus x is equal to 0 and m2y plus x is equal to 0. These are two separate equations of line we get. Therefore, their combined equation of line is multiply the two equations m1y plus x into m2y plus x is equal to 0. आप जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे इसके पहले के एग्जाम्पल्स में उस तरह से मल्टीप्लाई करिए. आपको मिलेगा x² प्लस m1 प्लस m2 ब्रैकेट एंड कॉमन टर्म इज x इंटू वाई प्लस m1 इंटू m2 इंटू y² इज इक्वल टू 0. इस तरह के एग्जाम्पल्स में ये आपका हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा. क्या है इक्वेशन? x² प्लस m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 इंटू m2 इंटू y². इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं x² प्लस सम ऑफ द स्लोप विथ xy प्लस प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विथ y². अब यहाँ पे है m1 प्लस m2, ये वैल्यू आपकी m1 प्लस m2 की वैल्यू है 2/3. पुट दैट वैल्यू ऑफ m1 प्लस m2 विच इज़ हियर 2/3 and product m1 into m2. m1 into m2 is -5/3. So put the value -5/3 into y². प्लस माइनस निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा. डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है. सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट इक्वेशन बाई 3. 3x² प्लस 2xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0. आपको इक्वेशन क्या मिला? 3x² प्लस 2xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0. फिर से एक बार प्रोसीजर देखिए. फॉर द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन गेट द वैल्यू ऑफ a, b and h. यूज द रिजल्ट फॉर सम एंड प्रोडक्ट. Sum of slope is -2h by b. Product of slope is a by b. Now here condition 1 is given, which is passing through origin and perpendicular to the lines.
परपेंडिकुलर कंडीशन होने के कारण स्लोप्स क्या हो जाएंगे, -1/m1 एंड -1/m2। उससे आप सेपरेट इक्वेशंस निकालिए, y इज इक्वल टू -1/m1x, y इज इक्वल टू -1/m2x। और ये दो इक्वेशन जो मिले हैं इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करते समय हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये मिलेगा आपका, x² + m1 + m2 xy + m1 × m2 y² इज इक्वल टू 0। और उस हिसाब से m1 + m2 की वैल्यू डालिए, m1 × m2 की वैल्यू डालिए। सो यू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि आपका यहाँ मिला है 3x² + 2xy - 5y² इज इक्वल टू 0। अगर सेम एग्जाम्पल आपको 2 मार्क के लिए पूछा गया है तो इतना स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं। आपने क्या क्या लिखना है, AH और B की वैल्यू लिखिए, m1 × m2 और m1 + m2 की वैल्यू लिखिए, और डायरेक्ट ये रिज़ल्ट यूज़ करिए, m1x वाला और ये नीचे वाला, ये 2 स्टेप्स, और m1 + m2 की वैल्यू पुट करो, m1 × m2 की वैल्यू पुट करो। एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताती हूँ यहाँ पर। आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगा हमेशा, ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0। तो सेम हेडिंग मीन्स हेडिंग पूरा ऐसा रहेगा, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। 2 कंडीशंस है, पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, सिर्फ वैल्यू शिफ्ट करना है। जैसे यहाँ पे है x² है, फिर xy है और y² है, ये चेंज नहीं होता h की वैल्यू। अब यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है आपका, a है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका b में। देखो 5x² था और b का कोएफिशिएंट था -3। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वैल्यू के जगह पर 5 के जगह पे क्या आ गया 3, और b के जगह पे क्या आ गया 3 के जगह पे क्या आ गया 5 -5y²। सिर्फ नंबर चेंज करना है, प्लस भी नहीं चेंज करना, माइनस भी चेंज नहीं करना। ax² + 2hxy + by² अगर आपका इक्वेशन है तो मिडल टर्म जैसे कि वैसी रहेगी, सिर्फ ये a यानी अगर यहाँ पे 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5y² के साथ चला जाएगा और y² का टर्म x² के साथ। पर यहाँ चेंज करते समय पे 3 लेना, -3 लेंगे तो भी चलेगा, वो मल्टीप्लाई होने के बाद में फिर से चेंज हो जाता है। पर 3 और 5 वो सिर्फ इंटरचेंज करना है आपको। देखो x² का कोएफिशिएंट चेंज हो गया, 2xy वैसा की वैसा है, और y² -3 था तो -a यानी 5 आ गया। इस तरह से काफ़ी एग्जाम्पल्स है आपको जो कि छुड़ाने के लिए होमवर्क दिया है एक्सरसाइज 4.1 में। यह आपका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं पुराने किताब में से और नए किताब में से आपको शेयर करूँगी। ये पेयर ऑफ लाइंस का आखिरी टॉपिक जो है जनरल इक्वेशन है वो डिलीट किया गया है, वो आपको इस साल के लिए पढ़ना नहीं है।